अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। Today, an accountant can write news stories. If she यहाँ से उतनी बढ़ रहा है एजेंसी आ रही हो, वाया कोई नेटवर्क आ रहा हो, वाया फ्रेंड आ रहा हो, वो खबरें कितनी सही हैं। इस काम के लिए पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनमें एक सबसे अहम नाम जनाब सुधाकर रेड्डी साहब का है। फैक्ट चेक पे आपका एक एक्सक्लूसिव 3 घंटे का आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो आप हिंदुस्तान के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करते हैं और लोगों को ट्रेंड करते हैं फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट चेक कैसे करें और इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में। आपकी बुक एक किताब है फैक्ट चेक पे, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगर बताएंगे आप सब जरूर उस किताब को रेफर करिए, उस बुक को रेफर करिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आप एक जर्नलिस्ट के लिए वो जो किताब है वो एक बार जरूर पढ़नी चाहिए अपनी जिंदगी में, ताकि आप भी इन हवाले से अपडेट रहें। मैंने समझा, और जो सबसे खास बात सर की है, डिपार्टमेंट में पहले भी आपने एक बार वर्कशॉप लिया है हमारे बच्चों के लिए। कल बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने रिक्वेस्ट की, सर ने हमारा इनविटेशन कबूल किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वी आर वेरी मच थैंकफुल कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें दिया। और हम प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सुधाकर रेड्डी साहब से कि फ्यूचर में हम वो 3 घंटे का आपका वर्कशॉप भी हम ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे किसी सुटेबल टाइम पे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अभी शायद यूनिवर्सिटी की मीटिंग है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, शायद मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है सुधाकर रेड्डी साहब का जो लेक्चर है जो वो आपके लिए बहुत काम होगा। आज जो पूरे 3 घंटे तो नहीं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है कि कुछ फैक्ट चेक पे, कुछ AI टूल्स वगैरह पे सर आपको रोशनास कराएंगे। नजाकत। Assalamu alaikum. Thank you for inviting me here, Professor Farid, Mohammed Farid, and Professor Danish, and head of the department. I'm the replacement today. Somebody else is supposed to come here. She couldn't come because of an emergency. So I came here on behalf of her. So we were supposed to take an AI session, but it's a 3-hour session. So on behalf of data leads, so we thought we would do it again sometime later. बाद में अक्टूबर में, साहब बोला अक्टूबर में करेंगे बोल के। तो आज का टॉपिक है मेरा फैक्ट चेकिंग इन द AI era, how it's changing the fact checking. So वो regular बात, maybe half of you were part of my classes previously. So I would rather touch upon like what are the trends, what's happening here. So in 2016, I visited United States as part of IVLP, International Visitor Leadership Program, Investigative Journalism Program. I think some of you are also an IVLP alumni. So first time I went to an organization called PolitiFact. It's a fact-checking organization using ChatGPT. You know, ChatGPT sucks misinformation. For instance, I was showing other day in a session, I have a website called sudhakarudumula.com. In that website, I write, I'll be the future Prime Minister of India, Chief Minister of India. Then you ask ChatGPT, because I allowed ChatGPT to read my website. So if you ask who is Sudhakar Reddy, it will say he is an editor investigation of Times of India. He is also going to be the future Prime Minister of India. Because investigative journalism,
doing on-ground reporting. Those people will survive. Those people will have jobs. So you need to be an original journalist, even original thinkers also, philosophers, writers, musicians. So I can make music like A.R. Rahman by using Suno or whatever. I can make videos using Runway ML. These days it's only 8 seconds, 12 seconds, but tomorrow it will go up further. So, but I can't be another A.R. Rahman. I can't be another Ilaiyaraaja. So for which whoever is the original musician who can produce the original music will survive. The ordinary will go. The ordinary reporter, the regular will go. So I advise, call upon all of you to be even original professors, teachers. It's happening right now because Notebook LM is changing everything. Notebook LM is a great tool of Google. Even in ChatGPT we have projects. Even PhDs will become absolute unless it is original quantitative research. Regular qualitative research any ChatGPT can do. और इसके बाद मैं अगले सेशन के लिए मिस नुसरत परवीन को आवाज़ देता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। आप तमाम प्लीज़ यहीं बैठे रहिए क्योंकि दूसरा सेशन बिल्कुल इमीडिएट शुरू होगा। He is a former member of Press Council of India, New Delhi, President of Telangana Urdu Working Journalist Federation, Steering Committee member of the Indian Journalist Union, former member of Media Advisory Committee in United Andhra Pradesh, Telangana, member of the governing body of Andhra Press Academy, Bureau Chief in Siyasat, Delhi, Associate Editor of Munsif TV, Delhi, Associate Editor of the Etemad, Delhi, and he has also authored 7 books. For example, मेरे ताबूत पर जश्न जो कि पुलिस एक्शन के वाकयात पर मबनी है। The second one is झरोका जो कि सर के मुंतखब कॉलम्स पर मबनी है। सहाफती कवायद व जवाबित एंड फोर्थ वन इज कानून हक मालूमात। सर का टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्टिंग इन उर्दू मीडिया, जिस पर वो आज लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड डिले मैं सर को दावत देना चाहूँगी कि सर आप डायस पर आए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हाजरीन में प्रोफेसर एहतराम साहब, डॉक्टर यामीन अंसारी साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और दोस्तों तुलबा व तालिबात, आप तमाम को मेरा सलाम है। ये मेरा जो सेशन है, ये सेशन कोई ऐसा नहीं है कि कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तकरीबन मेरे कोलीग हैं और बेशतर मेरे हम असर हैं। ये प्योरली इंटरेक्टिव सेशन है, टू वे ट्रैफिक। मैं कोई ज़्यादा काबिल नहीं हूँ और मैं भी सीखता हूँ आप लोगों के साथ। दूसरी बात, मुझे जो टॉपिक दिया गया है हेल्थ, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मैं एक सवाल आपसे पहले करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। ये बताइए कि ये दो तीनों सब्जेक्ट अलग है या एक दूसरे से मरबूत है? कोई बता सकते हैं? एक दूसरे से मरबूत है। मरबूत है, बिल्कुल सही। चूंकि हेल्थ और एजुकेशन ये डेवलपमेंट एक वास्ट स्पेक्ट्रम है, अब उसी के तहत हमको इसमें देनी चाहिए। और उर्दू अखबारात में चूँकि मामला उर्दू सहाफ़त से है और आप सब उर्दू के तालिब इल्म हैं, उर्दू के टीचर हैं, उर्दू के प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो ये क्या उर्दू अखबारात हेल्थ के ऊपर या फिर एजुकेशन पर
या डेवलपमेंट पर, ऐसा कुछ लिखते हैं? कुछ ट्रेंड है ऐसा? कभी कभी कोई हकीम का इश्तिहार आ जाता बस, या किसी पेड न्यूज आते हैं, पेड एजुकेशन के भी और हेल्थ के भी। तो ये चीजें हम अपने कलम के जरिए इसको आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, वेलनेस सेंटर। कई लोग हमारे साथी जो आरोग्यश्री वगैरह, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, पता नहीं दीगर स्टेट्स में इसका क्या पता नहीं, तो क्योंकि यहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे स्टेट्स के भी हैं। तो वेलनेस सेंटर में जो मुश्किलात होती हैं, हालांकि वो रिकॉग्नाइज सेंटर्स होते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं किस इलाकों में कहाँ कहाँ कौन से हॉस्पिटल में आपकी डिसीज हो सकती है, जो यानी इलाज हो सकता है। तो ये चीज़ों के बारे में हमारी जो उर्दू सहाफ़त की जो बात है, और आप उर्दू सहाफ़त में जहाँ तक है, चाहे यानी डिसीज आउटब्रेक हो या दीगर मामला हो, हम या तो हमारी रीजनल मीडिया में, खासकर तेलुगु मीडिया से बहुत आजकल लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन लोग तेलुगु मीडिया से आप यानी लिफ्ट कर देते हैं, लिफ्ट इरिगेशन चलता रहता है। ना सिर्फ वो चलता है, जैसा कि अभी इब्तिदा में फाजिल हुसैन परवेज़ जी बता रहे थे कि खुद की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जिस तरीके से होनी चाहिए। अब हम लोग जब फील्ड में रहते तो मैं ट्रैकिंग करता था मेरे साथियों की, कौन सा रिपोर्टर कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। कभी रैंडमली बिल्कुल बगैर किसी बताए कि मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चले जाता हूँ, क्योंकि एक से दो खौफ हो जाता है। और उसके अलावा कॉपी देख के मैं खुद पहचान लेता हूँ, ये चोरी सी कॉपी है, या किसी से ली हुई कॉपी है, या खुद से। क्योंकि आप खुद अपने आंखों से जब देखकर रिपोर्टिंग करते हैं, वो कॉपी बिल्कुल अलग होती है, अनमैच होती कॉपी। तो आज उर्दू अखबार, अब कई हमारे साथियों को बोलता हूँ, अरे मेरा रिपोर्टिंग तो बहुत अच्छी है, मगर कल फंक्शन में नहीं दिखे, ले लिया सब। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी बहुत से साथी मेरे साथी हैं, लेकिन मेरे सब आई ट्रीट देम माय फैमिली मेंबर्स। वो एक बार हम गांव में गए, किसी मतलब कहते तो अरे बोला यार न्यूज़ सब एक जगह किसी हम सब उन्होंने एक पास करते थे, वो खाली डेडलाइन बदल देते बस सब अखबारों में एक जैसी खबर। तो ये कभी भी ये चोरी की काम, आप एक काम करो, 10 काम मत करो। आपकी इंडिविजुअल, ठीक है, आज एक नहीं मिल रही खबर, दूसरे दिन करो, लेकिन अपना जो रहता है, अपना होता है। क्योंकि हर इंसान में कुदरत ने बहुत टैलेंट दिया, उस टैलेंट को अपन यूज करना। कॉपी की जिंदगी नहीं चलती, कभी कभी इमरजेंसी हो गई, कहीं मुश्किल हो गई, ठीक है, इट्स ओके। जैसा कि आटे में नमक, यहाँ क्या हो गया, नमक में आटा हो गया, रोटी बनती चली। तो ये हिसाब है। दूसरा जो है आपके टास्क के साथ है। Sir, I was in Delhi and I felt ill there in Delhi, sir. As you talked about this health reporting, what is the role and the responsibilities of a reporter in this health beat, sir? Sir, my question is, sir, I was in Delhi and I felt ill there and I got medicine recommended by doctor, 300 rupees, sir. Sir, when I returned home, sir, in my Kashmir, sir. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, जिन्होंने रेड सैंड्स के ऊपर या स्मगलिंग के बारे में जो किताबें लिखी, जो इनका इन्वेस्टिगेशन है। और आप यकीन कीजिए, अभी जो फिल्म पुष्पा आई थी, उसका कहानी भी आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। और आप इस कमोवरी में जिस तरह से आपने एक इनकलाब लाया है, ये हम उर्दू साथियों की खुशकिस्मती है कि हम आपके तजुर्बे से फैज़याब हो रहे हैं। सर, तमाम उर्दू मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी माजिद भाई वगैरह के साथ आपने तेलंगाना मीडिया अकेडमी में भी आपका जो प्रेजेंटेशन था, उससे भी बहुत लोग फ़ायदा उठाए हैं। और यकीन है कि आपके साथ, आपकी सोबत में, आपकी निगरानी में, ये हमने अभी फैक्ट चेकिंग के बारे में जो बात कही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1450 साल पहले कुरान शरीफ में एक सूरह नाज़िल हुई, सूरह अल-हुजरात, जिसमें कहा गया कि जब कोई फासिक यानी झूठा, यानी जो बेईमान शख्स है, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक किया कर लो, वरना कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो अगर मैं चाहिए एक दूसरे को समझना चाहिए, तो कुरान शरीफ में
ऐसे बहुत से वाक़यात थे जिससे आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में आपको मालूमात होंगी। अभी मैंने हाल ही में यूट्यूब पर, जैसा यूट्यूब के बारे में ये कहा जाता है कि जैसा सोशल मीडिया पे कि इससे निगेटिव असर हो रहा है, लेकिन उसका पॉजिटिव असर ये है कि आज उसके इतने अच्छे उसके कंटेंट्स हैं। जर्नलिज्म क्या एक तरीके से इसको कहते हैं इनहैंस रिपोर्टिंग एंड न्यूज़ राइटिंग विद द एग्जामिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं बट इट इज़ नॉट ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। एक तरीके से इनहैंस जो रिपोर्टिंग जो ट्रेडिशनल करते हैं उससे हट के है, जहाँ पे एक तरीके से स्टोरी को जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, इतना बड़ा बड़ा डेटा है, वॉल्यूम्स ऑफ डेटा है, उसको आपको सिंपल तरीके से पब्लिक के सामने रखा होगा। आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी भी होंगी, भी उस पर आएंगे। साइमन रॉगर्स ने कहा डेटा गिव्स यू वेज टू टेल स्टोरीज विच जस्ट वर नॉट पॉसिबल बिफोर। यू कैन टेल अमेजिंग स्टोरीज विथ डेटा you could not have done before. It gives insight into the way people think and behave. ये साइमन रॉगर्स जो कि डेटा ब्लॉग गार्जियन का न्यूज़पेपर है, उन्होंने डिफिनीशन दिया, बहुत खूबसूरत डिफिनीशन है। वो कहते हैं कि एक तरीके से डेटा हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम किस तरीके से स्टोरीज को बेहतरीन ढंग से लोगों के सामने पहुंचा सकें, जो कि पहले इस तरीके की सहूलत नहीं थी। बहुत जरूरी है हम जब अखबारी दुनिया में आए तो मुझे हमेशा से लगता था कि भाषा रिच होनी चाहिए। अगर आपके पास शब्द भंडार नहीं है, अच्छे शब्द नहीं है लेखन में, आपके लिखने में, तो आपकी कॉपी अच्छी नहीं होगी। तो उसी में विभागाध्यक्ष भी, मतलब टीचर भी नहीं थे और गेस्ट टीचर पढ़ाते थे और किताबें भी नहीं थी हम लोगों के पास। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने सोचा कि क्यों न एक भाषा पे वर्कशॉप किया जाए। तो हिंदी पत्रकारिता और भाषा कि हिंदी पत्रकारिता की भाषा कैसी होनी चाहिए, उस पर एक 6 दिन का वर्कशॉप और देश के जितने नामचीन चेहरे थे पत्रकारिता के दुनिया के, वो सब लोग उसमें आए थे। तो जब मैं परसों हैदराबाद आया तो फरियाद साहब के कमरे में बैठे थे, तो हमने इनसे कहा मेरी जिंदगी का ये दूसरा वर्कशॉप है जिसमें मैं आया हूँ। उसमें मैं आयोजक था, लेकिन इसमें में मुझे वही फील हो रहा है कि मैं इसका आयोजक हूँ। और सुनने में जो मजा है, अरे इतनी वैरायटी मिल रही है, इतने तरह की बातें हो रही है। खासकर कल का पूरा दिन तो मुझे लगता है कि डिजिटल और टीवी के नाम रहा, क्योंकि अखबार अब वैसे पीछे चला गया है। जैसे अखबार के दफ्तर में पहले एडिटोरियल नंबर 1 होता था मार्केट। देखिए, आज इस 3 डेज वर्कशॉप का दूसरा दिन था और आज 5 सेशन हुए, और जिसमें एम.ए. माजिद साहब और मिस्टर सुधाकर साहब टाइम्स ऑफ इंडिया से, मिस्टर फाजिल परवेज साहब, जनाब असद कमाल लारी साहब जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हैं, इन 4 लोगों का लेक्चर हुआ और मैंने भी अपनी बात रखी। तो टोटल 5 सेशंस हुए और बहुत ही अच्छे रहे। अलग अलग टॉपिक्स पे लोगों ने बात की और अपनी बात रखी, और काफ़ी जर्नलिस्ट का, हैदराबाद से उर्दू जर्नलिस्ट का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा रहा और स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे। तो एक तरीके से NCPUL और उर्दू यूनिवर्सिटी की इस 3 डेज की जो वर्कशॉप है बहुत अच्छे से सक्सेसफुली जो है चल रही है। आपका डेजिग्नेशन, आपका नाम? मेरा प्रोफेसर हूँ मैं, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। जी शुक्रिया। लारी हूँ, वाराणसी से आया हूँ। जी, आज का जो दूसरा दिन रहा कैसा रहा? बहुत बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था। काफी चीजें जानने को मिली हैं, और जो खासकर नए दौर का जो जर्नलिज्म है, फेक न्यूज से लेके डेटा जर्नलिज्म तक, उसके बारे में काफी अच्छी जानकारियां मिली हैं। और मुझे लगता है कि जर्नलिस्टों के लिए, और जो नई पौध है पत्रकारिता की, जो लोग BJ या MJ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी दिन था आज का। जी सर, ये पुराने जो जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, जूनियर को क्या मैसेज देना चाहिए? आज के दौर में जो जर्नलिस्ट बने हैं उनके लिए क्या मैसेज है? तो मैसेज क्या है, वो भाई जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे
ये देखिए तकनीक का दौर है। इस तकनीक के दौर में आप अपने को जितना ज़्यादा तकनीकों से लैस करेंगे, जितना ज़्यादा रिच होंगे और जितना ज़्यादा आपके पास अध्ययन होगा, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जी सर, ये भी देखा गया है कि उर्दू को तोहफा कम देते हैं, वैल्यू कम करते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? चाहे कहीं भी जाओ, हॉस्पिटल में जाओ या फिर स्कूल्स में नहीं, ये हर आदमी की सोच तो नहीं हो सकती। बच्चों सवाल जो है इंग्लिश की तरफ ज़्यादा लेके जा रहे हैं। सवाल ये कि तो हमें सोचना है ना, जी हमें तय करना है कि हम कौन सी भाषा को प्रेफर कर रहे हैं। अगर हमको ये लगता है कि साहब उर्दू से हमको अच्छा नहीं मिल रहा है तो इंग्लिश की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा से प्रेम तो जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज को सीखेंगे, जितनी ज़्यादा जुबान को जानेंगे, उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। वजह इसलिए सर घर में बच्चा इंग्लिश बोलता काफ़ी खुश होते हैं, उर्दू से कम होते हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, कोई वजह नहीं। देखिए ये हमारा माइंडसेट है कि हम ये सोच ले। आप ये बताइए कि जहां हम खड़े होकर बात कर रहे हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और हायर एजुकेशन में हैं। ये बच्चे कहीं न कहीं रोजगार के क्षेत्र से जुड़ेंगे ना, बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। इसलिए कि वो काफी ऊंची डिग्रियां लेके जा रहे हैं और उर्दू में वो उनकी सबकी डिग्रियां हैं, तो वो बेकार तो नहीं होंगे, वो रोजगार मिलेगा। और अच्छा, अब तमाम जगहों पे मखसूस है, कुछ जगह है ये, हर जगह तो जो इंग्लिश चल रही है। देखिए, इंग्लिश जो है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो आपको सभी जगह काम देगा। लेकिन उर्दू जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है ना। तो ये हिंदी से बना हुआ है। उर्दू खाली किसी मुसलमान की भाषा नहीं है, वो तो सबकी जुबान है, मिठास की जुबान है। हम जिन शब्दों में जब वो उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। गीत गजल वो सारी चीजें जब हम सुनते हैं तो आप देखिए ना कि किस तरह के गजलें हैं, किस तरह का वो कितने कम शब्दों में मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए।